delegates of China in peaceful land in Sindh. The government of Pakistan and government of Sindh always provide opportunities and always give this chance to all over the business community from the different countries of the world that you may come here, you can invest in different sectors in Pakistan, because the Pakistan has got lots of opportunities in different sectors of business. And especially if I'm talking about the Sindh government is the pioneer of public-private partnership. There are many projects which were started by government of Sindh in public-private partnership and which were endorsed and appreciated by global forums. Pakistan has got the best ranking in public-private partnership because of the Sindh government, they've initiated these projects. Since a couple of days, we have got different meetings with these Chinese delegates. Initially, the Honorable Chief Minister, he invited them, and after that, the different departments of government of Sindh, they have invited them, and I've attended a couple of meetings. Last night, as Mr. Aziz Jiji said, that President of Pakistan, he invited them and he gave them full, complete assurance from the government of Sindh, on behalf of government of Sindh and on behalf of the government of Pakistan, that whatever they want to do, they will have the complete support, unconditional support, so they can easily invest in different projects. And they have committed that they are going to start the medical city in Sindh, in Karachi, and then they want to invest in transport sector, they want to invest in the power sector, they want to invest in the agriculture sector and like livestock sector. So it's a good opportunity that, and it's a good opportunity that both the sides, like the Chinese government and the Pakistan government, together we can work for the investment and for the people of both the countries. Pakistan and China has got a very long relationship, very strong relationship, and we've got a long history. Recently, the biggest achievement of President of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, that he was the initiator, he was the founder of CPEC, and the China and Pakistan, through CPEC, they've started a couple of projects. And I think it's the biggest achievement from both the countries, that our brotherhood, our confidence with each other is always remarkable, and people are appreciating this. एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से दुनिया का बेहतरीन तरीन मुल्क है, क्योंकि हमारे पास हर किस्म के सीजन्स हैं, हमारे पास हर किस्म के माइंस और मिनरल्स हैं, हमारे पास हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. हमारे पास सिंध में अगर ख़ास तौर पर हम बात करें कि जो कोयला सिंध से निकाला जा रहा है और उसमें भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम चल रहे हैं, तो कोयला हमारा जो है अगर वो हम एक्सपोर्ट करें तो 200 साल तक हम बिजली पैदा भी कर सकते हैं, 200 साल तक हम कोयले को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. इसी तरीके से एक धाबेजी फ्री जोन जो है वो बनाया गया है, जो भी ये वाहिद फ्री जोन है पाकिस्तान को जिसको सीपेक के साथ वो फ्री जोन काम कर रहा है. और उस फ्री जोन में भी बहुत सारे मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी को ये चांसेस हैं कि वो यहाँ पे इस फ्री जोन में अपनी सरमायाकारी करके कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं. इस तरीके से जो विंड पावर का हमारे पास कॉरिडोर है उसमें भी मुख्तलिफ कंपनीज ने जो है वो विंड प्लांट्स लगाए हैं और विंड एनर्जी पैदा की जा रही है. ग्रीन एनर्जी के सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी सिंध सूबे में मौजूद हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा इस तरह के सेक्टर हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर के फील्ड में या बाकी फील्ड में भी हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है. रिसेंटली कॉर्पोरेट फार्मिंग भी शुरू की जा रही है, उससे भी लोगों को मुख्तलिफ मौके मिलेंगे. हम चाहते हैं कि हम अपने किसानों को इस तरह के फ़ायदे दिला सकें
जो हमारे चाइनीज़ दोस्त हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो इस तरह की बीज और खुराक को दें जहाँ हमारी किसानों की यील्ड जो है वो बढ़ सके, कि जितना भी लिमिटेड पानी है उसमें हम अपने किसान को इस तरह की टेक्नोलॉजी दें, हम अपने किसान को इस तरह के बीज दें कि जिससे वो जो आज वो क्रॉपिंग कर रहे हैं उससे उनकी डबल ट्रिपल उनकी यील्ड बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मौके मौजूद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सरजमीन में जो हमारे पास मौके हैं उनके साथ मिलकर हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। एनर्जी डिपार्टमेंट में नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत प्रोएक्टिवली जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी की हैं और इनको दिखाई भी हैं हमारे जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो राग़िब हो। और जो और अच्छी बात यह है कि जो इदरीस जी साहब ने जो B2B की बात की है, हम चाहते हैं कि जी चाइनीज़ बिजनेसमैन और हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं जिससे वो मुश्तरका तौर पे अपने कारोबार को बढ़ा सकें, कारोबार के मौके को बढ़ा सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बिल्कुल हर मुकम्मल तौर पर ताउन भी देगी। जितने भी बिजनेसमैन ना सिर्फ चाइना से किसी भी मुल्क से आएंगे उनको मुकम्मल तौर का सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा, उनको मुकम्मल तौर पे हर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो भी जिस भी सेक्टर में हमारे कारोबारी हजरात, हमारे भाई जहाँ पे सरमायाकारी करने चाहेंगे तो हुकूमत सिंध जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो उनको सहूलत फराम करेगी। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लिए हम आगे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है वो रुझान ज़्यादा बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।